Hello friends, Namaskar and welcome to my channel Art Study History. I am Rashmi and today I present my history classes and the topic is importance of a history or importance of the study of history. Why we study history and what the importance for the subject in the society. Today we are discuss about the meaning, definitions, nature, scope of the history. Before starting this topic, if you want a proper knowledge about history topic or history subject, then you are in the right place. And please keep your pen and a paper and make your own notes when I am trying to teach you or when the class is going on. So let's start this topic and know about the history and the concept of history, which we study as a topic in the school and the colleges. If you are interested on this topic, or if you are want other topics or other topics of the history subjects, please comment me on the comment section, and then I provide you these classes for you. Let's start. Today my topic is importance of study of history. Why we are study history and what is the importance of the history. In this classes, I discuss about definition of history, meaning of history, nature's value, and as a social science. History as a social science. Definitions. The term or the history are derived from the Greek word historia. As all you know, the history word was come from Greek word historia, which means inquiry or research. In ancient Greeks were six of knowledge and wisdom. So one of the subjects they added wisdom of knowledge that called as history. That means ग्रीक के जो लोग थे वो जो उनके पास जो ज्ञान था, वो उनके पास जो भी नॉलेज था, उसने क्या किया कि उसको उसने राइट डाउन किया. तो जो राइट डाउन किया, जो उसने जो लिखा, उसको बाद में उसको क्या एक नाम दिए ना, हिस्ट्री नाम दिए. इसको नाम क्यों इतिहास और हिस्ट्री दिए? क्योंकि हेरोडोटस जो है, वी नो Herodotus as the father of a history. Herodotus as the father of a history, and Thucydides was called as the father of a scientific history. इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. पहले हम ये देखेंगे कि जो हिस्ट्री है वो क्या है. हिस्ट्री ऑलवेज एन ए past event which is based on the true fact or the fact, which is those events based on the fact that called as history, without any sources, without any sources of any topic or any evidence or any events, we cannot call as history, because history always based on true fact. Remember, history always based on true fact or true evidence or sources. जैसे कि हम अगर कहेंगे कि कल हमारे यहाँ श्री नरेंद्र मोदी जी ने आए थे हमारे एरिया में, क्या आप लोग वहाँ उसको
विश्वास करेंगे कि हाँ जी कल नरेंद्र मोदी जी वहाँ के वो मैम के रीजन में गए थे। अगर उसके कोई भी एविडेंस नहीं है, अगर उसके कोई भी प्रमाण नहीं है, तो क्या कोई इसको ऊपर विश्वास करेगा कि हाँ ये जो कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं? अगर जो सत्य कह रहे हैं तो उनके लिए एक एविडेंस या प्रमाण चाहिए, जो वो कोई सा भी हो। अगर उनके पास कोई वीडियो क्लिप है या उनके पास कोई भी एविडेंस है, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर गए थे और ये उन्होंने अभिभाषण दिए कि यहाँ पर ये कुछ ना कुछ कहे। तो अगर कोई भी है जो अगर न्यूज़पेपर में आया होगा, अगर न्यूज़ में आया होगा, अगर कोई भी एक ही एविडेंस होगा तो उसको हम साबित कर सकते हैं। ये एक हिस्ट्री हो गया, आज के लिए ये हिस्ट्री है कि नरेंद्र मोदी जी मैम के यहाँ गए थे घूमने के लिए, मैम के यहाँ रीजन में गए थे घूमने के लिए उनके काम के लिए गए थे। ठीक है। और एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि अगर जैसे कि हम देखेंगे कि अभी जो वार चल रहा है उसका हम और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मैं कहूँगी कि कल हमारे यहाँ एक जगह पर कुछ प्रत्नतात्विक सामग्री पाए गए हैं, जैसे कि कोई मॉन्यूमेंट्स हो, कोई मंदिर का कोई वॉल का जो टुकड़ा हो वो मिला है। अगर क्या वो सत्य कह रहे, मैम सत्य कह रहे? अगर सत्य कह रहे हैं तो वो आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के पास भी तो उसके पास वो रजिस्टर होगा कि इस जगह पर ये चीज़ पाया गया है। अगर वो रजिस्टर है, उसके बारे में सब लोग जानते हैं, उसके बारे में प्रमाण है, तो वो सत्य होगा। ऐसे मुँह कह देने के बाद कभी सत्य नहीं हो जाता है। सत्य नहीं है वो हिस्ट्री के अंदर नहीं आता है। अगर वो इतिहास में गवाह है, इतिहास को लेकर अगर गवाह है तो वो हो सकता है, चाहे वो कौन सी जगह पर हो, चाहे वो कौन सी बात मंदिर को लेकर हो, चाहे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन को लेकर हो, वो अगर प्रमाण है वो इतिहास के अंदर आएगा। ठीक है। चलो अब देखते हैं कि learning by inquiry about the past event of mankind were later developed into a discipline। ये क्या ये जो लाइन है वो क्या कहता है? ये कहता है कि लर्निंग बाय इंक्वायरी, जो चीज़ हम लर्न करते हैं या फिर जो चीज़ हम पढ़ते हैं या सीखते हैं, कहाँ से? इंक्वायरी से जो सीखते हैं अबाउट द पास्ट इवेंट ऑफ मैनकाइंड के बारे में, मैनकाइंड के और ह्यूमन बीइंग के जो पास्ट इवेंट है, जो चीज़ हम सीखते हैं, वो जानते हैं, वी आर लैटर डेवलप्ड इनटू ए डिसिप्लिन। उसके बाद लैटर टाइम जब बीत जाता है, वो चीज़ जो पास्ट में हो जाता है, वो चीज़ बाद में जाकर एक डिसिप्लिन क्रिएट करता है जो मैनकाइंड के लिए काम करता है। जैसे जो सोसाइटी के अंदर इफेक्ट देता है, इम्पैक्ट करता है। एक एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके बारे में। हम ये एग्जाम्पल लेके कि हम कहते हैं महात्मा गांधी जो है वो उनका जो आइडियोलॉजी था वो क्या था? महात्मा गांधी का आइडियोलॉजी क्या था? नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ। नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ, ये क्या है? गांधी जी का महात्मा गांधी जी का ये एक वेपन है और ये आइडियोलॉजी है जिसको फॉलो करके बाद में हमारा जो फ्रीडम फाइटर वो उसको भी फॉलो करते थे। तो ये जो चीज़ है ये कहाँ से हम सीखते हैं?
महात्मा गांधी, हम ये चीज़ भी पढ़े हैं। कहाँ पर पढ़े हैं? हम जैनिज्म में पढ़े हैं, हम बुद्धिज्म में पढ़े हैं, हम ये सारी चीज़, ये दोनों कंसेप्ट बहुत सारे रिलीजन्स में बिलोंग करते हैं और डेली लाइफ में भी बिलोंग करता है। लेकिन वो जो चीज़ महात्मा गांधी जी ने वो नेशनल कंसेप्ट बना दिया, नेशनल आइडियोलॉजी बना दिया कि हमको नॉन वायलेंस, कौन किसी भी तरह हमको हिंसा नहीं चाहिए। वो अहिंसा के माध्यम से भारत में एक स्वाधीनता संग्राम चला है, जिसके बाद में हम हमारे इंडिपेंडेंट पाए हैं। तो ये जो चीज़ है बाद में हमको जो लोगों को डिसिप्लिन सिखाता है कि हाँ हमको ये भी मार्ग अपनाना चाहिए। ठीक है, चलो ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट किसी ने दिए हैं? ये कंसेप्ट दिए हैं दोज आर प्रेजेंटेड बाय ग्रेट हिस्टोरियंस लाइक हेरोडोटस एंड थुसिडाइडस इन द ग्रीक इन एंशिएंट ग्रीक हिस्ट्री। ये जो कंसेप्ट हो ये किसने दिए हैं? हेरोडोटस और थुसिडाइडस ने दिए हैं। तो हेरोडोटस कौन है और थुसिडाइडस कौन है? हेरोडोटस वाज called as the father of history and Thucydides was called as the father of scientific history. Why Herodotus called as father of history? Because he write an events that's called as in his book. Herodotus wrote their books known as Greco-Persian War. In this topic, they describe about the wars and the consequences about the wars, and he described about in this book they called as histories. Histories book written by whom? Histories book written by Herodotus, and in this book he described about Greco-Persian War, and in this book he described about the war history, historia, and which means inquiry. So we called as Herodotus as the father of history. यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप लोग मुझे कमेंट करोगे कि कौन हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं? किसने हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री का मान्यता दिए थे? और हु meaning of history. Many historians opine or give their different definitions or meanings of a history. Among all the historians, I only take some important historians' opinions, and these are discussed in this page. First, Thomas Carlyle, Professor Thomas Carlyle describe about in the French Revolution. He described in his book French Revolution. He opined that according to Thomas Carlyle, history as biography of a great man. History is nothing but a biography of a great man. मतलब जो हिस्ट्री इतिहास वो है जो एक ग्रेट मैन, जो वाइज मैन है, ग्रेट मैन है, उनके बारे में लिखा गया एक ही उनके लिए आत्मजीवनी है। ठीक है, उसके बाद कौन आते हैं? ईएचस्कार इन हिज बुक व्हाट इज हिस्ट्री, he described about the meaning of history, that history is unending dialogue between present and past. That means history एक ब्रिज जैसा है जो प्रेजेंट और पास्ट में संबद्ध प्रतिष्ठा करता है। जैसे कि प्रेजेंट में
जो भी घटना घटता है और जो भी इंसिडेंट हो जाता है उसका इम्पैक्ट पास्ट में जो घटना घटती है उसका इम्पैक्ट हमेशा प्रेजेंट में दिखाई देता है। इसलिए ये जो दोनों को कंबाइन दोनों के माध्यम से और दोनों के अंदर जो भी घटना होती है दोनों को समझने के लिए हमको हिस्ट्री जानने के लिए ज़रूरत है और एक बड़ी सदस्य वो काम करता है। लेनियर प्रोफेसर रेनियर ने क्या कहा है कि हिस्ट्री इज़ नथिंग बट द स्टोरी ऑफ अ मैन लिविंग इन द सोसाइटी। इतिहास कुछ भी नहीं है, जो लोग सोसाइटी में रहते हैं उसके बारे में ही है, उसके बारे में एक स्टोरी है। ठीक है। हेनरी फोर्ड क्या कहते हैं? हिस्ट्री इज बॉन्ग। बुरी का क्या कहते हैं? हिस्ट्री इज साइंस, नो लेस नो मोर। हिस्ट्री एक विज्ञान है, ना वो अधिक है ना वो कम है, ना वो साइंस से अधिक है ना वो साइंस से कम है। विल डुरांट क्या कहते हैं? इन हिस्ट्री इज ए नैरेटिव ऑफ व्हाट civilized men have taught और डॉन इन द फास्ट टाइम। हिस्ट्री एक नैरेट इवेंट है, ये नैरेट इवेंट है जो अतीत के जीवन में जो लोग थे, सिविलाइज लोग थे, में जो सभ्य लोग थे, उन्होंने जो भी उनका जो थॉट प्रोसेस है और उनका जो आइडियाज़ है उसके बारे में ही लिखा गया है। ठीक है, चलो देखते हैं उसके बाद क्या है। हाँ, देयर आर क्वेश्चंस। आज हिस्ट्री there are questions. History as science or art? In which category we take history? In which category? Inside science or in art? In above all the discussion, there are many opinions, but I take some little points that R.J. Collingwood conceives the role of a history similar to science and saying science is finding things out। साइंस क्या करता है? जो चीज़ होता है वो उसको जो भी चीज़ होता है साइंस उसको निकालता है, उसके बारे में अनुसंधान करके, इंक्वायरी करके, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करके वो चीज़ वो समाज के सामने लाता है। उसी तरह हिस्ट्री इज़ ए साइंस, दैट सेंस हिस्ट्री इज साइंस। उसी तरह हिस्ट्री और इतिहास भी एक विज्ञान है। जैसे कि साइंस एक्सपेरिमेंट करके एक सिद्धांत में आता है, एक कंक्लूजन में आता है कि एक्सपेरिमेंट में ये मिला है, उसी तरह हिस्ट्री इतिहास भी वो उसके पास्ट में जाकर उसके सारे सोर्सेस को अनुसंधान कर उनकी इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च करने के बाद एक कंक्लूजन में आता है और एक उसके बारे में मेरिट्स और डिमेरिट्स और उसके लिए क्रिटिसाइज की करता है और उसके रिजल्ट्स भी लाता है। सो while science applied the methods like observation, hypothesis, experiment to derive the scientific laws, जैसे साइंस अप्लाई करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स अप्लाई करता है। जैसे कि ऑब्जर्वेशन, कौन सा टॉपिक जो भी जो फील्ड में वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, जिसके लिए वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं उसके बारे में पहले ऑब्जर्व करते हैं, उसको हाइपोथेसिस करते हैं, हाइपोथेसिस परिकल्पना करते हैं, ये करने के बाद क्या आएगा और एक्सपेरिमेंट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटिफिक लॉज लाते हैं। उसी तरह हिस्ट्री इंक्लूड कलेक्शन ऑफ सोर्सेस, वेरिफिकेशन ऑफ सोर्सेस, क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस एंड एक्सपेक्टिंग द रिजल्ट्स एंड फाइनली क्रिटिसिज्म।
उसी तरह हिस्ट्री में भी और इतिहास की अनुसंधान में भी हमको क्या हिस्टोरियन क्या नीड होता है। वो पहले कलेक्शन ऑफ सोर्सेस डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेस को कलेक्ट करता है, उस सोर्सेस को वेरिफिकेशन करता है कि वह सही है या गलत है। उसके बाद वो क्लासिफिकेशन करते हैं कौन सा सोर्सेस किसके अंदर, जैसे कि हमको पता है टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। और उसके बाद वो एक कंक्लूजन लेता है और उसके रिजल्ट में पहुंचता है कि क्या करना है और इसका रिजल्ट क्या होता। और रिजल्ट के बाद भी उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। किसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है? जो हिस्टोरियन जो भी लिखा है, उस टॉपिक पे जो भी लिखा है उसके बारे में क्रिटिसाइज़ किया जाता है। जैसे कि अभी हमारे पेंडेमिक गया है 2019 के जो पेंडेमिक आया था, वो सारे जो भी उसका जो इम्पैक्ट है वो कैसे स्टार्ट हुआ, वो कैसे कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके बारे में रिसर्च किया गया। डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज कलेक्शन किया गया है। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज तो वेरिफिकेशन हुआ, क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज हुआ। हम कहाँ से इसके बारे में पता चला हमको, हम तो ऐसे घर में बैठकर नहीं पता चला। अगर बैठे हैं तो कौन सी चीज़ से हमको पता चला कि ऐसे एक बीमारी आ रहा है और एक पेंडेमिक आ रहा है जो देश के लिए और सारा विश्व के लिए एक खतरनाक साबित हो सकता है। हम न्यूज़पेपर से जाने, हम न्यूज़ से जाने, हम सोशल मीडिया से जाने, तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं और बहुत सारे ऐसे सोर्सेस है जो जिसके बारे में हमको पता चलता है। तो बाद में उसका जो रिजल्ट्स क्या हुआ, कौन सा देश में कितना सारे लोग डेथ हुआ है और कौन से देश इसके लिए जो वैक्सीन लाए हैं, इसके सारे के सारे डिटेल्स में भी अवेलेबल है। तो वो क्या है, वो भी तो एक इतिहास है। अब के लिए हमारे लिए अभी हमारे लिए वो एक हिस्ट्री है। लेकिन वो जो हिस्ट्री है उसको जानने के लिए हमारे पास फुल प्रूफ है और फुल हमारे पास एविडेंस है। ठीक है, तो चलो जानते हैं आगे क्या हुआ। When historian used imaginations, when historian used his imaginations to make past appear to so real and credible, his readers that time history was called science of history. historians उनके इमेजिनेशन के हेल्प से पास्ट को एक रियल इंसिडेंट तरह उसको प्रेजेंट करते हैं। और उसके लिए वो प्रॉपर जो एविडेंस है, प्रॉपर जो प्रूफ है अगर उनके पास है, उस टाइम हिस्ट्री को क्या कहा जाता है कि साइंस क्या कहा जाता है। ठीक है, तो हिस्ट्री called as science insofar as use the scientific method and as an art, the manner of treatment and composition। जब हिस्ट्री को हम साइंस कहते हैं जब उसमें साइंटिफिक मेथड यूज होता है, और हिस्ट्री को हम आर्ट कहते हैं जब उनमें मैनर्स यूज होते हैं, जिसके इमेजिनेशन हो या उनके प्रूफ हो उसको लेकर जब कहते हैं उसको हम आर्ट कहते हैं। ठीक है, तो मेनी हिस्टोरियन कंसिडर दैट हिस्ट्री एज द ओल्डेस्ट ह्यूमनिस्टिक साइंस। हिस्ट्री एज द ओल्डेस्ट ह्यूमनिस्टिक साइंस। हिस्ट्री एक ऐसा विज्ञान है जो मानविकता और मानव की विज्ञान के बारे में हमको प्रूफ देता है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। हम कल पढ़ेंगे हिस्ट्री के नेचर और हिस्ट्री के नेचर ऑफ हिस्ट्री, course of history and values of history. If you are interested, if you are got knowledge, some kind of knowledge about history, please like, share and subscribe this channel.
And if you interested or want to know about some topics of history, please comment me this topic name, and I prepared for you a notes or a class. Thank you. Please like and share, like and comments. Please like and comment in these videos. Thank you.